Very good morning to students. I'm Professor Samita Shunde. We will continue with the SP class. This is the third lecture of ours. In last class, we are completed the term finance, meaning of finance, the term corporate finance, and two decisions, financial and investment decisions, which is required for the business. Now I'll begin with the importance of your corporate finance. Why this corporate finance is required? Now we know that the finance is required, yes, and in your business all departments are equally important, but the finance is having a lot of importance because without finance you cannot move ahead for any activity. Now here are the few importance are written: helps in decision making, helps in raising capital for a project, helps in research and development, helps in smooth running of a business firm, brings coordination between the various activities, promotes expansion and diversification, managing risk, replace old assets, payment of a dividend and interest. Now, there is some time limits. So for here, I at least try to cover at least 8 points. Now, how to remember this importance? How can you remember? There is a formula is given here. H4 BMR P. Now BMR you remember very well. H4 you also remember very well. So now H stands for what? Helps in decision making, helps in your raising capital for a new project or a project, helps in a smooth functioning, smooth running of a business. Next is helps in a research and development. So these are the 4 H. Now B stands for brings coordination between various activities. Next is M stands for your managing risk, R stands for replace of old asset, and P stands for your payment of a dividend and interest. And one more point is given in your textbook, that is payment of taxes and fees. Now we will begin with the next slide. Now first point, helps in decision making. Yes, so finance is the most important aspect for any business. Most of the important decisions of a business is totally depends on what kind of or the availability of funds you have. Now what is given in slides? Funds are the important factor for any business. Yes, of course. Funds सभी business को चाहिए होता है. And without funds you cannot perform or you cannot move ahead for your any further activities. Next is after getting the good profit, yes, your firm is now going to settle. For example, मैं example दूंगी यहाँ पे. Mr. A ने business start किया है, yes, and at the initial stage उसने कुछ capital investment किया है. तो कैपिटल सपोज उसका 20,000 का होगा, तो डेफिनेटली वो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसको डेफिनेटली व्हाट ही एक्सपेक्टेड, उसको 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए. 20,000 से कम होगा तो आप लोग उसको क्या कहोगे, मुझे लॉस हो रहा है. यस, तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. टिल दिस एवरीवन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज every firm's decision in the business is needed to be taken keeping in a view of an impact on a profitability. तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी कौन हो रहा है उतना ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ बाबा मैं ये लूँ या वो लूँ, मुझे प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना मैं कंपनी के लिए ज्यादा मैं प्रॉफिट क्या सोचूंगा. यस, so now this is called what? Decision. So next is business organization can give green signal to those projects which is having more profitable. बिजनेस के लिए जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल है वैसे ही बिजनेस कंपनी के लिए या क्लाइंट के लिए हमें लेना चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है. ABC कंपनी को 5 क्लाइंट्स हैं और 5 क्लाइंट में से नंबर 2 वाला क्लाइंट है वो ज्यादा उनको पे कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है. यस,
तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो दैट मीन्स विच इज बेनिफिशियल टू यू। जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप फर्दर यूज करोगे। टिल दिस एवरीवन अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज इट मीन कि बिजनेस में फाइनेंस जरूरी है और फाइनेंस पे आपका हर एक डिसीजन डिपेंड है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ आई मूव टू योर नेक्स्ट स्लाइड। हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। आपका बिजनेस सेटल हो जाता है, आप बिजनेस को हर साल हर मंथ एक नया प्रोजेक्ट लेते हो और ये नए जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको पैसा चाहिए। For that you need a capital. So this funds, this capital can be raised in the form of shares, debentures, bonds, your deposits, loans. Loans can be taken from the bank. So these are the various sources from there your funds can be raised. Till this everyone understand? Yes. Now next is third point is helps in research and development. Yes, we know that research and development is required. First, I'll give example here कि आप लोगों को मोबाइल लेना होगा तो आप 10 साल छोड़ो, आप लास्ट मंथ में जो मोबाइल आया था वो लोगे, ये जो अभी करंट वाले सिचुएशन या करंट वाले मंथ में जो मोबाइल आएगा वो आप लोगे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो आप नेक्स्ट मंथ में न्यू मोबाइल है, न्यू ब्रांड है, न्यू फीचर्स है, ऐसा वाला आप फोन चूज करोगे। यस, एम आई क्लियर? सो नाउ दिस इज व्हाट कि आपको लास्ट मंथ का फोन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाले नए फोन में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स है, ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तब ये टेक्नोलॉजी ऐसी आती है क्या? नो। सो दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ व्हाट? योर रिसर्च। रिसर्च मीन्स व्हाट? जो आपने सर्च किया है उसके ऊपर आपको फिर से एक बार सोचना है, फिर से आपको न्यू फ्रेम्स सोचना है या कुछ न्यू आइडियाज देना है, दैट इज योर रिसर्च। सो जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उतना क्या होगा, कंपनी का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो आपका ग्रोथ होगा। यस, ग्रोथ कैसे होगा? मेरे ज्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे, मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूंगा। यस, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट मोबाइल, बट इन अ डे यू आर यूजिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यस, कोलगेट का अभी वाला ब्रांड और पहले वाला ब्रांड, देयर इज अ डिफरेंस। पहले सिर्फ कोलगेट का टूथ पाउडर आता था। Nowadays you can see this Colgate is having a lot of options. This Colgate is frame in a different type, flavors. So this is called what? Research. And this research is taken a lot of time and lot of money as well. तो जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उतना कंपनी को पैसा भी चाहिए। Till this third point is understood. Now next is helps in a smooth running of a business firm. Yes. Now this point explain us that finance is necessary. Without finance you cannot move ahead. ये हमें पता है। कैसे फाइनेंस? अभी हम लोग देखते कि फाइनेंस हर जगह पे चाहिए। शेयर होल्डर्स को लेने के लिए चाहिए, रिसर्च करने के लिए चाहिए, आपका एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन टेक्निक्स के लिए चाहिए। आपके जो एम्प्लॉयज है उनको आप सैलरी नहीं दोगे तो वो हमारे लिए, कंपनी के लिए काम ही नहीं करेंगे। सो दिस इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। मीन्स आपके बिजनेस में जो काम करता है, जो डिपार्टमेंट आपके लिए काम करता है, उन सबको एज एंड whenever they want you have to provide a money. Now in your book there is an example is given. Salaries to the employees should be paid on a time. Loans are cleared on time. Raw material is purchased whenever required. For example, कंपनी को ये मंथ एंड में, कमिंग मंथ एंड में कुछ आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट देना है मार्केट में, और ये प्रोडक्ट्स करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये काम किसका है? रॉ मटेरियल का प्रोवाइड करने का, आपके प्रोडक्शन का, उनको रॉ मटेरियल परचेज करना। बट वो परचेज कैसे करेंगे जब उनको पैसा ही नहीं दिया? लेंगे क्या? नो। सो दैट मीन्स टू रन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू नीड अ फाइनेंस। अनदर एग्जाम्पल इज आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को आप 2 दिन की सैलरी मत दो, देखो क्या हो जाता है। दैट एम्प्लॉयज टेंडेंसी, यस, उसका दिमाग या उसको वो क्या सोचेगा, ये मुझे सैलरी नहीं दे रही, तुम यहाँ पे क्यों काम करो? कि एवरीवन वांट्स टू वर्क फॉर व्हाट? मनी।
Yes. So till this, everyone understand. Now next is I covered a second last point here because it saves a space. So I used it here. Payment of dividend and interest. Dividend is to be paid to your shareholders and interest is to be paid to your creditors, your bankers and etc. So यहाँ पे उनको ऑन टाइम पेमेंट होने के लिए डिविडेंड का ऑन टाइम पेमेंट होने के लिए बैंक को प्रॉपरली लोन का इंटरेस्ट लोन पे करने के लिए व्हाट यू नीड प्रॉपर फाइनेंस. यस, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट brings coordination between the various activities. Now, हर कोई कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता जो फाइनेंस होता है. Every company have a different departments. If suppose that organization is a manufacturing, so there is a production department, there is a marketing department, there is a sales department, there is your finance department, there is an admin department, and so on. So these are the various departments are included in your organization. Now, corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in organization. आपकी कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग करना है, सब एक्टिविटीज अच्छे से करना है. सो व्हाट यू हैव, यू मस्ट हैव अ व्हाट कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल के लिए जो रॉ मटेरियल के लिए जो लेने के लिए पैसे जो चाहिए वो आपको कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दे आर गोइंग टू डू आज नहीं कल नहीं ऐसे आपके साथ बिहेव कर सकता है. सो फॉर दैट पर्पज एवरी ऑर्गेनाइजेशन must have a proper coordination among them. Yes, the efficiency of every department is totally depends on the effective financial management. जितना आप अच्छे से फाइनेंस मैनेज करोगे उतना सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करेंगे. नेक्स्ट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. नाउ जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंपनी को क्या चाहिए होता है? एक्सपांड करना होता है, उनको कुछ न्यू बिजनेस करना होता है. सो दिस इज व्हाट योर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. और ये एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? जैसे कंपनी नई मशीन्स लेंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे, so that's are required for expansion and diversification. Without that you cannot move ahead. Yes, for example आपकी कंपनी में कंप्यूटर तो है बट कंप्यूटर के लिए आपको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए. और ये जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है, न्यू वर्जन लेना पड़ता है. सो दैट इज व्हाट योर न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी आप जैसे जैसे लोगे वैसे वैसे क्या होगा? आपका बिजनेस या आपका फर्म एक्सपांड कर सकता है. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन्स एंड योर टेक्नोलॉजी. टिल दिस एवरीवन अंडरस्टैंड कि आपको मशीन्स और आपकी टेक्नोलॉजी न्यू जैसे जैसे मार्केट में आता है वैसे वैसे आपको लेना चाहिए. क्यों? एक तो आपका ग्रोथ है और आप क्या कर सकते हो? आपकी कंपिटिटर्स के साथ आप compete कर सकते हैं. Last point for today's class, managing risk. Company has to manage several risks such as a sudden fall in sales. Now हमें पता है कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है. Yes? तो every business is almost collapse. हाँ, every business. हमें पता नहीं है कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा. We don't know. We are not aware about it. Yes, so company has to manage several risks. हमारे पास कंपनी के साथ पास बहुत सारे रिस्क होते हैं which you already studied in OCM. Yes, last year. So here, such as a sudden fall in sales. देखो अभी मॉल्स का सब बिजनेस ठप हो गया बट हम लोग अपोजिट में देखेंगे जनरल स्टोर्स का बिजनेस चल रहा है. Not some extent, not to up to the mark, but at least some extent it's going on. Electronic business. हाँ, अभी कोई आप लोग इलेक्ट्रॉनिक लेने के लिए जाओगे क्या? नो. So this is what such a sudden fall in sales, loss due to the natural calamities, फ्लड हो सकता है, आपका अर्थक्वेक हो सकता है, एनी सिचुएशन में अकर, एंड लॉस ऑफ ड्यू टू द स्ट्राइक की वजह से आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपकी पूरी एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे है. सो व्हाट इज द रिजल्ट? दीज आर मैनेजिंग different types of risk. You need finance. Without financial aid,